हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल की पॉइंट 05 ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈਟੀਟੀ ਗੇਡਨ 894 ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਮੈਥ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਸਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ 9530806705 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲਾਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਟੂ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਖੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਖੜੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, these two axes intersect one another। ਜੇ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਰੀਜਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ? ਓਰੀਜਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਓਰੀਜਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਓਰੀਜਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਐਕਸ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਓਰੀਜੈਂਟਲ ਪਾਰਟ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਐਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੀਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਈ, ਜੇ ਵਾਈ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਡੈਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਾਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਐਕਸ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਐਕਸ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਵਾਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚਾਰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਆ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਟ ਆਰ ਲਾਈ ਇਨ ਅ ਸੇਮ ਲਾਈਨ। ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਜੇਕਰ 3 ਔਰ ਮੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਈ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ,
3 पॉइंट, एक मिनट, ठीक है। आ जिवें 3 तो ज़्यादा पॉइंट ले लिया आप, ठीक है, 3 या 3 तो ज़्यादा पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है। ये पॉइंट्स जिहड़े की हुंदे आ एक ही लाइन के उत्ते 3 या 3 तो जिहड़े ज़्यादा पॉइंट होंदे वो किहड़े हुंदे आ क्लीनियर पॉइंट, इक्को लाइन दे विच होने चाहिए, सीधी रेखा दे विच, ठीक है। इस तरह नहीं कोई पॉइंट मान लो एक पॉइंट इत्थे हो गया, आ सेम लाइन जा रहे, एक पॉइंट जेकर इत्थे आ ले लिया, ठीक है, ये आ दो क्लीनियर होणगे, आ पॉइंट क्लीनियर नहीं होएगा, ठीक है। की कहते आर पॉइंट जिहड़े आर लाइन सेम लाइनस, ठीक है, उन्होंने की कहते हैं क्लीनियर पॉइंट। अगे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला जो मेन अपना हम शुरू होंगे इनके डिस्टेंस फॉर्मूले तो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला की है, देखो अपने को 2 पॉइंट है, ठीक है। एक मान लो पी पॉइंट, पी है इनके x1 y1, ठीक है, क्यू इनके रहने x2 ते y2, ठीक है, 2 पॉइंट ले ले। हुण डिस्टेंस फार्मूला की बनेगा, आप की करा d इजकल टू थले नीचे लिखे भी है, मैं दोबारा समझा भी दिना, रूट के लैना है x2 की माइनस करा x1 माइनस करा, ठीक है, फिर इन्हों का कर देंगे स्केयर प्लस y2 की माइनस करा y1 माइनस करा, फिर इनका की कर देंगे स्केयर, इनमें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, आ देखो आ फार्मूला लिखा डिस्टेंस का x2 माइनस x1 दी स्केयर y2 माइनस y1 दी उपर रूट, ठीक है। आ देखो आ कि आप कोऑर्डिनेट दिते एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस, इन एक आ फिगर बन रही है, ठीक है। इन जो आ पॉइंट है x2 माइनस x2 xy एंड y1 x1 y1, ठीक है। इन जो आप 2 पॉइंट आ वेखो एक डिस्टेंस है, आ लाइन एक तरीके होर समझा देना, आ देखो आ लाइन है, एक आ ए पॉइंट है, आ बी पॉइंट है, इत्थे 2 पॉइंट दिते x1 y1, ठीक है, इत्थे पॉइंट दिते है x2 y2। आप ए बी की दूरी पता करनी, वो किमें पता करांगे इनके कोऑर्डिनेट तो, इनके कोऑर्डिनेट्स जो इनके पॉइंट दिते उन्होंने आप माइनस करांगे x2 x1 कटा के उपरों का स्केयर करांगे प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर करके रूट के आप अगे सम करांगे, तुहानूं समझ आ जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला की है x2 माइनस x1 द होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्केयर अंडर रूट, ठीक है। एक ही है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको एक लाइन का डिस्टेंस जो कढ़न वास्ते क्या जो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन, जो अपने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ऑफ ए लाइन, ठीक है, ये कढ़न लिए कह दें तो आप ही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करांगे। अगे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला एक और है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, दो एक पी के पॉइंट दिते एक्स ते वाई फ्रॉम द ओरीजन, जो कहन ओरीजन तो आप डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना, फिर आप फार्मूला किमें लगाना है, देखो फार्मूला तो सेम ही है, जिमें आप ओ पी एक लाइन हैगी है, ठीक है, आ एक लाइन दी है, इनका पी पॉइंट दिता है, आ ओ पॉइंट दिता है, ठीक है। इस ओरीजन तो आ पॉइंट जा रहा है, देखो एवें है, ठीक है, आ चीज़ हैगी है, आप आ दूरी फाइंड करनी ओ पी की, ठीक है, ये 0 दिता, आ पी पॉइंट आपको एक्स ते वाई दिता है, ओके, इनकी आप दूरी फाइंड करनी है, उदों आप की फार्मूला लगाना है, तुहानूं मैं डायरैक्ट फार्मूला दस दिना की हुंदा है, ये जो डिस्टेंस आप कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरीजन तो किसी भी एक लाइन का या लाइन सैगमेंट का डिस्टेंस फाइंड करो, तुसीं उहदा फार्मूला लाना रूट दे विच एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, बस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये फार्मूला नोट कर लो तुसीं, ये डिस्टेंस कढ़ना हुंदा है किसी भी पॉइंट का ओरीजन तो, मान लो ओरीजन तो किसी कोई भी पॉइंट दिता है उनका आप की करना डिस्टेंस कढ़ना, ओ पी इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। अगे चलते हैं, कहना इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर क्लीनियर दैन, जदों भी आपको कह देन भी 3 लाइन ये 3 पॉइंट दिते, देखो मैं तुहानूं समझा देना, 3 पॉइंट दिते होंगे, ठीक है, ए बी सी, तुसीं चैक करना है कि ये जोड़े तीनों पॉइंट है ये तीनों पॉइंट क्लीनियर है कि नहीं है, ठीक है। जिवें देखो एक लाइन दी है, आ लाइन है, ठीक है, इनदे ते एक आ पॉइंट दिता है,
एक आ पॉइंट दिता है, एक आ, 3 पॉइंट दिते हैं ए बी सी। तुसी करना ए बी ते सी, ठीक है 3 पॉइंट। तुसी ये चैक करने कि तिन्ने पॉइंट कोलीनियर है कि नहीं। तुसी पहला ए बी का डिस्टेंस कड्डोगे इन्ना, ठीक है, फिर की कड्डोगे बी सी का डिस्टेंस कड्डोगे, फिर की करोगे ए सी का डिस्टेंस कड्डोगे, तिन्ने डिस्टेंस कड्डोगे। तुसी की तिन्ने डिस्टेंस कढ़ के डिस्टेंस फार्मूला लगा के फिर पहला कि ए बी डिस्टेंस कढ़िया, फिर ए बी ते बी सी नूं की करोगे ऐड, इक्वल किंदे रखोगे सी दे। मान लो ए की वैल्यू आउंदी 6, बी की वैल्यू आउंदी 4 ते सी की वैल्यू आउंदी 10। जेकर 6 ते 4 10, जेकर 10 इजकल टू 10 इट मीनस कि ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू ए सी इक्वल है, तो तीनों पॉइंट की होंगे क्लीनियर। अगर ए बी प्लस बी सी नॉट इजकल टू ए सी आता है, अगर ए बी प्लस बी सी नॉट इजकल टू ए सी दैन दीज आर पॉइंट आर नॉन क्लीनियर, ठीक है। दीज पॉइंट आर नॉन क्लीनियर, ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ क्लीनियर नहीं, समरेखी नहीं होणगे। ਜਦੋਂ ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी होणगे दीज पॉइंट आर क्लीनियर। इफ ए बी प्लस बी सी आर नॉट इक्वल ए सी दीज पॉइंट आर नॉन क्लीनियर, या दीज पॉइंट आर नॉट आर क्लीनियर, ठीक है। इस तरह आएगा। ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਕੇਅਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨ ਸਕੇਅਰ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਏ ਬੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, सी तो डी का डिस्टेंस भी फाइंड करना पेगा, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना, बी सी का, सी डी का, ए डी का, ए सी का करना पेगा, बी डी। ये सारे डिस्टेंस अपन फाइंड करके चैक करने पैणगे कि ये सारे एक दूजे के इक्वल है कि नहीं। जेकर ए बी की वैल्यू 4 आती है ना, तो बी सी डी डी ए सी ये सारिया की वैल्यू 4 आनी चाहिए है। इस करके फिर ये की होएगी स्केयर होएगी, ये स्केयर की कंडीशन है, ठीक है। इस रैक्टेंगल की कंडीशन की होगी, कहता है रैक्टेंगल आ देखो एक रैक्टेंगल बनाती, कहता है इन रैक्टेंगल ओपोजिट साइड्स आर एंड डायगनल आर इक्वल। इनके डायगनल भी इक्वल होंगे तो ओपोजिट साइड मान लो की है ए बी बी सी सी डी, ए बी के बराबर डी सी की मेजरमेंट होनी चाहिए है, बी सी के बराबर डी ए की डिमेंशनस होनी चाहिए है। ये डिमेंशन सेम होनी चाहिए, तो आ डायगनल की होने चाहिए इक्वल, आ दोनों डायगनल आपस में इक्वल होने चाहिए है। दैन की होएगी रैक्टेंगल की होएगी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। जो ये इन्हों से लगने डिस्टेंस फार्मूले ही है। हुण जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम किंदे तो जनरेट होंदी है रैक्टेंगल तो, ठीक है। फिर कहेंगे इन अपने इन दिस केस में द पैरेललोग्राम ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। आ पैरेललोग्राम आप बनाने लगे, पैरेललोग्राम कित्थों बनती है अपन पता है, पैरेललोग्राम बनती है रैक्टेंगल तो, थोड़ी टिल्ट बन जाती साइडा। इन्हें दी ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, इस साइड दे आ इक्वल होनी चाहिए है, तो इस साइड दे आ इक्वल होनी चाहिए। ओपोजिट साइड्स आर जेकर इक्वल होने तो डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना सारे, ठीक है। अगे चलते हैं, कहते पैरेललोग्राम बट नॉट अ रैक्टेंगल। पैरेललोग्राम तो है बट नॉट अ रैक्टेंगल। इसकी कंडीशन की है, इन दिस केस में ओपोजिट साइड पैरेललोग्राम की तुहानूं मैं हुणे दस के गया कि इन ओपोजिट साइड्स तो इक्वल होणगियां, ठीक है। ओपोजिट साइड तक की होणगियां इक्वल, बट ओपोजिट बट द डायगनल्स आर नॉट इक्वल। आ डायगनल इक्वल नहीं होंगे, कहने का मतलब कि ओपोजिट साइड ए बी सी डी। हुण की है ओपोजिट साइड मान लो ए बी दे इक्वल होएगी कि डी सी, ते बी सी दे इक्वल होएगी डी ए, ठीक है। बट की है ए सी नॉट इक्वल डी सी, ठीक है। ए सी नॉट इक्वल डी सी, ये इनकी कंडीशन है। ये होर तुसी डिटेल दे विच करना चाहते तो मैं मैथ की प्लेलिस्ट में जाके 994 लिखा है, ATT 994 प्लेलिस्ट च जाके तुसी ज्योमैट्री पोर्शन सारा मैं करवाया है। उहदे च ये चीज़ां बहुत डीपली समझाइयां गई हैं, सारी ज्योमैट्री डीपली समझाई गई है। तुसी उत्थों आदा नोट्स उत्थों कंप्लीट कर सकते हो। बहुत चंगी तरीके नाल रैक्टेंगल बारे दस्सिया गया, पैरेललोग्राम, स्केयर, रैक्टेंगल सब कुछ A to Z जो भी ज्योमैट्री का जिन्ना पोर्शन है एक पॉइंट तो लैके क्वाड्रिलेटरस तक सारा कुछ डीपली समझाया है, तुसी उत्थों नोट कर सकते हो, ठीक है। अगे रोम्बस बट नॉट अ स्क्वेयर।
रोमबस की जो गल करते हैं, इन दिस केस आल साइड आर इक्वल, कहता इन की है रोमबस की है, रोमबस आँदी है स्क्वेयर तो, ठीक है। इन दी ऑल साइड टिल्ट होंगे बट ऑल साइड की होंगी इक्वल, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सारिया साइड इक्वल होंगे बट वो कहता डायगनल आ दो डायगनल जिमें जिहड़े आ दो डायगनल है ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है। डायगनल इक्वल सेम है पैरेललोग्राम ते रोमबस का, ठीक है। अगे हम अपना पहला सम है, हम आप पहला सम करते हैं, कहना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आ 2 पॉइंट दिते है, एक लाइन दी देखो आ ए बी, इनके पॉइंट दिते है 3 ते 5, ठीक है। इनके जेकर 2 पॉइंट दिते हैं -1 ते 2, डिस्टेंस फार्मूला लावांगे, डिस्टेंस फार्मूला ए ते बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ठीक है। हम आप x2 कितनी है आ कहते आ x1 होंगे आ y1 होंगे, ठीक है। आ x2 होंगे आ y2 होंगे, लग गई समझ, ठीक है। हम आप सोल्व करांगे, x2 कितना -1 x2 कितना -1, ठीक है। और x2 x1 कितना इतने माइनस लगाना -3 द होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस y2 कितना 2, ठीक है। तो y1 कितना अपने को 5, ठीक है। 10 स्क्वायर -3 तो -1 तो -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 दे विचों 5 गए माइनस का 5, ठीक है, -3, ओके। हम देखो अगे 4 का स्क्वायर कितना होंगे 16, -4 इंटू -4 16, -3 का कितना होंगे 9, ये ऐड करके कितना आ गया अपने को 25, 25 किसका रूट है 5 का, या 5 किसका स्क्वायर है 25 का, ठीक है। तो अपने को जो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है। आंसर कितना आ गया, ओ सॉरी आंसर कितना आ गया 5 आ गया, 25 नहीं 5, कितना आंसर आ गया 5, बस ये डिस्टेंस फार्मूला लग गया। अगे देखो अगला सम कहना इफ द लेंथ ऑफ ए लाइन सैगमेंट इज 13 यूनिट, हम देखो एक लाइन दी हुई अपने को, ठीक है। आ लाइन दी है, हुण ये लाइन की लेंथ दी हुई है 13, इफ वन एंड ऑफ द पॉइंट आ जो एंड मान लो आ ए पॉइंट है, ये एंड की अपन वैल्यू कितनी दी है 5 ते 7, ठीक है। एंड द हुण मेरी गल सुनो, अबसीसा की होंदा ते ऑर्डीनेट की होंदा, इस चीज़ों का तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। अपने को अबसीसा की होंदा ते ऑर्डीनेट की होंदा, ये चीज़ा अपन पता होनी, सीधा अपन डायरैक्ट नहीं दिंदे एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस दिते होने, अपन अबसीसा जिन्होंने में दिते होने, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। हुण देखो अबसीसा ऑफ द अदर पॉइंट इज -7 एंड फाइंड द ऑर्डीनेट ऑफ द अदर पॉइंट, ठीक है। अबसीसा गिवन है, ऑर्डीनेट आपां फाइंड करना है, ठीक है। लैट कर लो जी चीज़ फाइंड करनी है, लैट ऑर्डीनेट वाई, ठीक है। ऑर्डीनेट क्योंकि अबसीसा जो पॉइंट होंगे ना, अबसीसा वो पॉइंट होंगे अपने कोल वाई पॉइंट मे बी नहीं, अबसीसा पॉइंट होंगे एक्स, सॉरी अबसीसा जिमें ए देखो एक्स ते वाई दिते हुए ना, आ होंगे अबसीसा आ होंगे ऑर्डीनेट, ठीक है। हुण वो की कह रहा है अबसीसा ऑफ द पॉइंट इज 7, अबसीसा की वैल्यू दी, अबसीसा कितना दिता है -7, ठीक है। एंड फाइंड ऑर्डीनेट, ऑर्डीनेट मतलब वाई फाइंड करना, वो आप ले लिया सॉरी ए अबसीसा वो आप किया वाई लैट, ठीक है। वो आप लैट किया वाई, इट मीन तुहानूं मैं भी कहता अबसीसा दिता है, अबसीसा की होंगे एक्स होंगे,
ऑर्ਡੀनेट की हुंदा है वाई हुंदा है, ठीक है। अबसीसा हुंदा एक्स, ऑर्ਡੀनेट की हुंदा वाई हुंदा है, ठीक है। लगी समझ। हुण कहना अबसीसा दिता है तो आपां की है ऑर्ਡੀनेट फाइंड करना है। हुण सेम ही है, फार्मूला तो भी लगाना डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। हुण मैं इत्थे सीधी वैल्यू पुट करांगा, डी की वैल्यू आपां दित्ती हुई है, ठीक है। डी की वैल्यू 13 दित्ती हुई है, फार्मूला तुहानूं पिछे लिखाया है, ठीक है। हुण देखो वो अपन कह की रहा है, कह रहे अपन एक्स तो वाई दिते, X1 Y1 दिता है, X2 कितना दिता -7 तो एक्स Y2 दिता है, उन्होंने आप लैट किया ऑर्ਡੀनेट पॉइंट में वाई, ठीक है। हुण आप वैल्यूज फिल कर देंगे, X2 -7, ठीक है। X2 -7, X1 कितना 5 10 स्केयर होवे, ठीक है। वाई, ठीक है, वो आप मन्निया वाई मन्निया, वाई तो मन्निया इत्थे वाई आउंदा हुंदा, ठीक है। हुण अपने कोल ते Y2 - Y1 कितना 7 10 स्केयर, ठीक है। हुण आप की करांगे, देखो इधर रूट है ना, मेरी गल सुन। हुण इधर की उपर इन्हें रूट दिता 13 दिता, इत्थे आप की करांगे 13 का स्केयर कर देंगे, ठीक है। तो इधरों अपने ऑटोमेटिक रूट की कैंसल हो जाएगा जा, ठीक है। इधरों की इधर स्केयर लाया तो इधर रूट, या फिर इनके सारे दी भी की करांगे आप रूट करांगे, ठीक है। देखो कि मैं इज इक्वल टू -7 तो -12 5 -12 का स्केयर प्लस वाई -7, इनू आप खोल के लिखांगे, ठीक है। वाई का स्केयर ए -b को इनके अपने आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। a -b के स्केयर वाली -14 वाई -2 AB, ठीक है, प्लस बी स्केयर मान लो 7 का स्केयर 49, ठीक है। वो मैं तेन कहा ना इनके उपर सारे स्केयर लगा, आ देखो स्केयर लगाती। हुण आ स्केयर नाल आ रूट कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। हुण अगे आप चलते हैं, 13 किसका स्केयर है 116 का, ठीक है। लगी समझ। हुण जेकर इनू आप सारे सोल्व करांगे, ठीक है, आ वाई स्केयर अगे आ जाएगा, ओके। उस तो बाद आप की लिखांगे -14 वाई, ठीक है, -14 वाई, ठीक है। हुण जो इन्होंने दोवां सोल्व करांगे 40 तो आ 12 का स्केयर कितना हो गया 144, ठीक है। 144 के विचों जो प्लस का हो जाएगा तो 49 जोड़ देंगे तो अपने को कितना आ जाएगा 193 आ जाएगा, ठीक है। 193 अपने को सॉरी कट हो गया सी उहदे नाल आपां लगा के, ठीक है। हुण की करांगे आपां इहदी एक एग्जैक्ट एक वैल्यू कढ लांगे, देखो किवें वाई स्केयर -14 वाई। हुण देखो आ ट्रांसपोज करांगे 193 पे आ जिहड़ा इधर आके ट्रांसपोज इधर इनू माइनस हो जाएगा, इहदे जो इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, ये 20 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 24 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 24। ये हुण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व करांगे, ठीक है। वाई दी स्केयर ये आप किहड़ा मैथड लवांगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नूं स्प्लिट करके, ठीक है। मिडल टर्म नूं स्प्लिट करके उंज 20 अपन पता 12 तो 2 14 होंदा है तो 12 दूना 24 होंदा, ठीक है। हो गई स्प्लिट, उवें आप इन्हूं स्प्लिट कर लांगे, ठीक है। -12 वाई, ठीक है, तो -2 वाई हो गया, -12 तो -2 -14 प्लस का -12 इंटू -2 कितना हो गया 24 प्लस का हो गया ना 0। हुण इनू कॉमन ले लांगे आप, ठीक है। जेकर वाई कॉमन लिया तो की रह गया वाई -12, इत्थे रह गया वाई -12, ठीक है। तो आ -2 एज इट एज लग जाएगा, ठीक है। किहड़ियां दो वाई -12 आ गया, एक वाई -2 आ गया, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 2 आ गई, 12 तो वाई दी कि वैल्यू आ गई, कि 12 आ गई तो 2 आ गई, ठीक है। ये 2 वैल्यू आ गया ऑर्ਡੀनेट। 2 अदर पॉइंट कि आ गए अपने को 2 तो 12 तो 2, ठीक है। इस हिसाब नाल करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुहानूं सोल्व करनी आउंदी है, ओके। लग गई समझ। पहला आप की करना है उवें अपनी ए बी की वैल्यू दी होगी, ठीक है। वही डिस्टेंस फार्मूले इक्वल रख के
फिर इनू सोल्व कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन तुहानू खुद ही करनी पैनी है। ठीक है, हुण तुसीं ETT का जेकर पेपर देन जा रहे हो, इट मीनस कि कैलकुलेशन तो तुहानू आउंदी होएगी। ठीक है, अगला एक लास्ट सम है, कहंदा फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच जिहड़े इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, इन्हां दोनों पॉइंट तो जिहड़ा कि वो पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस ते है। ठीक है, कहना फाइंड द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, जेकर वाई एक्सिस ते कह रहा है आप लैट कर लेने कोई आर पॉइंट है जिहड़ा कि वाई एक्सिस ते कह रहा है, इट मीनस जेकर वाई एक्सिस ते एक्स की होएगी 0, जे इत्थे कहन वाई एक्सिस ते है, मान लो वाई एक्सिस दा पॉइंट दिता है तो एक्स का नहीं दिता है, जे इत्थे कहन एक्स एक्सिस फिर आप लेना वाई नू 0 लेना, जे वाई एक्सिस कह रहे हैं एक्स 0 तो वाई पॉइंट है ही है। जे इत्थे लिखा होंदा एक्स एक्सिस फिर आप की लिखना सी एक्स एक्सिस, फिर आप एक्स की वैल्यू तो लिखते नहीं सी कोई, बट वाई की हो जाना सी 0 हो जाना सी। ठीक है, इस हिसाब नाल हुण देखो अपने को आर पॉइंट तो आ गया, आ 2 पॉइंट जो दिते हुए हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट एक पॉइंट है पी। ठीक है, पी पॉइंट हो गया -5, पी पॉइंट की है -5। ठीक है, ते 2। ठीक है, एक पॉइंट दूसरा आप ले लेने क्यू, इन्हें लैट कर ले, नाम तो देने पैने ना। हुण की कहंदा जिहड़ा आर पॉइंट है ना, इन्हां दोवां तो बराबर दूरी ते है। मान लो कहना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस वो पॉइंट पता करो भी जिहड़े इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर है फ्रॉम द पॉइंट, इन्हां दोवां पॉइंटां तो की है बराबर दूरी ते। आप लैट कर लेने आर पी इज इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, आ देखो आ जिहड़ा दोनों आर दोनों पासे आ रहा है, पी तो क्यू बराबर है, इन्हां दोवां तो एक की है बराबर दूरी ते है। ठीक है, इन्हां मैं तुहानूं दस्सां एक चीज़, आर पी इन्हां दोवां दा तुसीं स्केयर ले लेना। ठीक है, स्केयर ले लेना क्योंकि आपां फिर रूट नहीं लगाना पैना, रूट तो वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक है, फार्मूला वही लगाना है, किहड़ा फार्मूला आपां लगाना है डिस्टेंस फार्मूला ही। हुण आपां की करांगे डिस्टेंस फार्मूले दे विच x2 माइनस x1 तो y2 माइनस y1। ठीक है, सेम दोनों पासे आर पी पी पॉइंट। ठीक है, तो आर क्यू दोनों पासे लगाना है। हम लिख लो -5 -0। ठीक है, 2 माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस की हो जाएगा 0 का स्केयर प्लस -2 माइनस वाई का स्केयर। हम इन्हों आप सोल्व करना है। ठीक है, 5 and 25 ये तो हो गया 0 प्लस इनू आप इस आइडेंटिटी सारी सोल्व करांगे, 2 दूनी 4 प्लस वाई स्केयर। ठीक है, ए माइनस बी की स्केयर वाली आइडेंटिटी लगनी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab वाली। ठीक है, -4y बस इनू सोल्व ही कर रहे हैं। 81 9 का स्केयर 81। ठीक है, अगे इनू सोल्व करांगे आप 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस वाई स्केयर क्योंकि जेकर माइनस बाहर कट देंगे ना इतों तो ये प्लस की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, हम इन्हों आप सोल्व करना है, ऊपर मैं करन लग्या। ठीक है, इत्थे इन्हों आप सोल्व करांगे आ 425 तो 429। ठीक है, तो की रह गया अपने को प्लस वाई स्केयर। एक मिनट रुको, इतने पहले वाई स्केयर रह गया, वाई स्केयर लिख लो नाल, और की रह गया -4y। ठीक है, प्लस 29 उधर की रह गया वाई स्केयर प्लस 4y। ठीक है, प्लस 85। ओके, हुण देखो हुण देखो सेम दे विच आ देखो आ इधर बोथ साइड सेम सेम कट्टे गए, आ माइनस का 4 है वाई है, आ प्लस का 4y, इधर आके किन्ने हो जाएंगे माइनस के 8y हो जाएंगे। ठीक है, आ पे 29 ये उधर जाएगा। ठीक है, जेकर इन्हों उधर लैके जावांगे 85 के 29 जाएंगे तो किन्ने आ जाएंगे अपने को 56। ठीक है, जेकर इतों अपन वैल्यू कढ़ीए
देखो इत्थों आप जेकर वैल्यू कढ़ीए, इत्थे आप वैल्यू कढ़ देंगे y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 56.-8 तो कट के कितनी आ जाएगी y की वैल्यू -7 आ जाएगी, -7 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो इक्विडिस्टेंस का कहन, ठीक है, उदों तुसी की करना है, इन्हों एक पॉइंट लैट कर लेना, उन्होंने अलग नाम देना, वो पॉइंट देखो आर इधर तो आर इधर दोनों, तो दूसरे पॉइंट नाल पी तो क्यू। ठीक है, तो जिमें जिमें तुसी लिखिया इन्होंने दोवों की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पुट करके तो सोल्व कर देना इन्हों। ठीक है, बस इन्ना ही है अज की वीडियो विच। उम्मीद करदा तुहानूं अज दी वीडियो वधिया लगी होएगी तो समझ भी आ गया होगा। जिन्हों भी दोस्त कुछ समझ नहीं आया प्लीज़ वो मैसेज कर देन। ठीक है, नैक्सट वीडियो दे विच तुहानूं उस स्टडी क्वेरी नूं सोल्व जरूर किया जाएगा। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करना साडे चैनल नूं। थैंक यू, गॉड ब्लैस।